I hope you all are good. Okay, so today we're starting with the articles. Yesterday we've studied about STSCs and how they've come in pictures, right? Like how these communities were even recognized, and we all know that they were recognized under two articles after independence. That's the post-independence, and the articles were Article 341 and Article 342, right? So Article 341 states what? Article 341 simply states that there is a recognition of SCs, and then Article 342 recognition of STs. So to learn this, we can have like a mnemonics type of thing. See, S already symbolize, I mean, it also symbolize half 8, but also it is very similar to 3. Okay, now STs has T, right? Now T is 2, so you have to remember 3 and 2 and 4, and then इतना ही बहुत होगा अगर इफ एग्जाम में आपको आता है तो. बट इफ इन केस एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं, इफ यू वांट टू रिमेंबर, देन यू हैव टू लर्न इट. पापा अपने आप याद करो भाई, इतना क्या हो रहा है, ठीक है. एंड सेम फॉर द 341 S is 3, right? Like it is similar. Now C is 3 and आई डोंट नो, लाइक यू रिमेंबर इट, नहीं पता मुझे. चलो, मतलब 341 एस टी याद रख लोगे तो एस सी ऊपर वाला है उससे 341 342. ओके, दैट्स हाउ यू रिमेंबर. सो फर्स्ट एस सीज वर रिकग्नाइज, सो यू ऑलवेज रिमेंबर द सी. सी पहले आता है तो सी पहले रिकग्नाइज हुए थे, मतलब एस सी नॉट सी है ना. चलो, ओके. सो टुडे वी स्टार्टिंग विद द आर्टिकल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. फर्स्ट इज द आर्टिकल 40, very important and very eligible article, that is equality before law. Equality before law. I mean, it states what it states. We're talking about that, and then of course the real life scenario we all know, right? Like there is a news abhi I think there was a case. I don't remember the name of the case. In West Bengal right now. It was against some TMC leader, and the victim, was winning the case, and जो गवाह था वो जा रहा था अपनी गवाही देने के लिए, एंड लाइक सम बॉलीवुड शिट उसको मार दिया गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ही वाज डेड ऑन द स्पॉट अलॉन्ग विद द फैमिली दैट ही वाज विद. इमेजिन, ये होता है. बट चलो कोई बात नहीं, आर्टिकल है तो हम पढ़ लेंगे, हमें तो देखो जी करना ही है ना लाइफ में आपका गवर्नमेंट साथ देगी नहीं देगी, ऐसा सोच के चलना कि लाइफ में गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ गवर्नमेंट आ पाती है. अदरवाइज गवर्नमेंट इज़ फॉर द गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉर द पीपल. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट, इट विल बी एंड इट हैज़ बीन द केस. आप पहले से अभी तक ले आइए, गवर्नमेंट ओनली वर्क्स फॉर द पावर. जहाँ उसको पावर दिखेगी गवर्नमेंट वहीं काम करेगी. एनीवेज, इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट स्टेट्स दैट, लेट्स सपोज if you're doing a crime, you don't do, okay, just suppose that if you're doing a crime and if some other person is also doing a crime, that's the same crime in a similar way, and this person is ultra rich and you are not rich. Did I just trigger you? Rich nahi hai aap? Anyways, so this article says that you and this rich person would be equal in front of law. In the court, you and this rich person will be weighed equally based on the crime you have done, not on whatever basis your religion, your caste, anything is there. No, there is an equality. So this is what Article 14 states. I hope Article 14 is clear. Okay, now we move on to Article 15. See, Article 15, see, okay, इसको याद रखने का तरीका, 14 has to be there is a month, उस मंथ का एक मंथ का 14 को मेरा बर्थडे है, तो मेरे को तो याद रहेगा भाई कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है मेरे बर्थडे के दिन. ना 15, 5 odd number and teen. 15, okay, 5 odd लोग not so, this is how I learn. So 5 odd do the discrimination, right? So 5 teen वाले, teen जो लोग हैं, 5 odd teen do the discrimination, right? तो इस आर्टिकल को बोलते हैं prohibition of discrimination. So it's very simple, like whatever ways there can be discrimination, like based on the age, caste, religion, place, color, etc. There can be any amount of discrimination that can happen, but Article 14 says कि नहीं कतई भी नहीं होने देंगे भाई, कतई भी नहीं होने देंगे. और इसी में ही ये मेंशन इसलिए हमने किया है इसमें, क्योंकि इसमें कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये उसको भी केटर करता है. दैट मीन्स this article 15 gives legal way to government to provide for the people if they are being discriminated, and that is why reservation is legal. But we all know कि क्या सीन था, अब क्या सीन है, एंड हाउ चीज़ें हो रही हैं. आई मीन, ये आर्टिकल देता है लीगली, बट सेंटिमेंट्स लीगलिटी को एक्चुअली प्रूव नहीं करते. दे डोंट गो अलॉन्ग विद द लीगल थिंग्स. सेंटिमेंट्स आर actually against this very concept of reservation. Any which ways, we can't do much here. So yeah, Article 15 was the prohibition of discrimination.
Then comes Article 16, 6 even teen. So 6 teen log would be doing the job. This is how I learned. So when you write the job, you almost write it like 6, ulta 6. So that's how I correlate. I mean, this is how I learn, right? So anyways, so 6 even teens, they will do the job, right? So the Article 16 says that there should be equality in the jobs, या फिर एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होनी ज़रूरी है. और इसी के बेसिस पे आपको ये जितनी भी रिजर्वेशन in SCs, STs, in government jobs, you will find based on Article 16. Okay, now moving on to find out the next article. I hope clear हो रहा हो, article equality in employment. Okay, sure. Next article is Article 17. Article 17 is the article which we are talking, and there's prohibition of अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 याद रखना भाई, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इस टॉपिक का. आर्टिकल 17, एंड इसी में आता है द फेमस द मोस्ट मिसयूज्ड ST/SC एक्ट. भाई खतरनाक लेवल का मिसयूज़ होता है इस एक्ट का, बट वट एवर वी कांट डू मच. ठीक है जी. तो आर्टिकल 17 इज दैट आर्टिकल. विल नो हम कुछ एग्जाम्पल्स वी गोना सी, लाइक नॉट एग्जाम्पल्स एज टू जो भी हुए हैं, बट एग्जाम्पल्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड हाउ एंड व्हाट आर द न्यूज़. आई डोंट नो ये न्यूज़ आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, but you all should. Anyways, Article 17 is the prohibition of untouchability. Now we are moving to Article 21. This article should be everybody's favorite article. Why? Because it gives you right to live, Papa. That means you and your life has a value, and that value is being provided by Article 21, and it gives you right to life and personal liberty. Okay, so right to food, water, electricity, environment, and what all things are left, privacy and shelter, etc. These all things you have a right of. So that is why government has to do things, for all of us to provide these, at least these basic things that we all have a right of. Well, most of the people wouldn't have this thing. Now I think many of us will be having all of these things, but there's one thing that we are going to highlight, and that is this thing, this environment plus clean environment. क्लीन एनवायरनमेंट तो कहीं डूब चुका है पानी में, धागे से लटक के मर रहा होगा कहीं सुसाइड करके. एनीवेज, हम पढ़ने में फोकस करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा. चलो जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर्टिकल 38. आर्टिकल 38 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ सेट इज़ स्टेट फॉर यू. सो आर्टिकल 38, okay, 3 is again, 3 is S, मतलब 3 resembles S, right? So मतलब I तो correlated with SCs, and SCs क्या होते हैं, people होते हैं. So that's how you will correlate. I mean, that's how I correlate, but whatever the way you want to get. Okay, so Article 38 is the DPSP, Directive Principle of State Policy. Directive Principle of State Policy. Okay, and this article very much says that, state has to promote the welfare of people. एंड बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल ये आर्टिकल इसी के बेसिस पे, इफ़ यू हैव फाउंड आउट दैट व्हाट ऑल स्कीम्स आर देयर, सो इसी के बेसिस पे यू वुड फाइंड स्कीम्स लाइक पेंशन यही है. हाउसिंग स्कीम जो होती है ना, एक सर्टन लोगों को हाउस भी दे रही है भाई गवर्नमेंट, भयंकर काम है. आप एक्चुअली ना, जो मिडिल क्लास है ना, और जो एवरेज पर्सन है, वो कहीं लाई नहीं करता. बिकॉज एवरेज, इफ़ यू आर एन एवरेज पर्सन और यू मिडिल क्लास, ईदर बिकम वेरी पुअर और बिकम रिच. बिकॉज there is absolutely nothing being middle class in India. It's because you're only giving tax. You're not receiving any benefit from either government or anybody. या तो आप बहुत ही गरीब बन जाओ तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको फ्री का घर मिल जाएगा, एंड आपको फ्री हर महीना कुछ इतना रुपया आएगा, ये आएगा, खाना, राशन, एक्सेट्रा. और इधर यू बिकम टू रिच सो दैट यू डू नॉट नीड एनीबडीज फेवर. then that's how you gotta live your life. Otherwise, if you're a middle class person or an average person, you are just the dust for the country. You're just paying the tax. Yeah, I mean, anyways, am I just triggering a lot of people here, including myself? Well, I am. Anyways, okay, so schemes, all the pension schemes, housing schemes, scholarships, okay, and anything, the free rations, all are legal and are coming under this Article 38. Okay, so this actually says, this article states what? This article states that the state will have to look for the welfare of people, and
reduce poverty, rich poor gap and backward classes discrimination, और इसी के लिए ये हो रहा है। अच्छा, मतलब ना मेन फैक्ट आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे, इसका ना मेन फैक्ट ये था कि बैकवर्ड क्लासेस को ना बैकवर्ड नहीं रखना है। मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड इसलिए बोला जाता था क्योंकि उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ चीज़ें नहीं थी। लाइक उस समय अगर हम इफ़ वी गो हेयर, लाइक उस समय अगर हम सॉरी बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो बैकवर्ड क्लासेस पे उनको बैकवर्ड क्लासेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उनके पास फूड नहीं था, इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, उनके पास रिस्पेक्ट नहीं थी एंड दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, प्लस दे डिड नॉट हैव मनी एट्सेट्रा। आई मीन ये चीज़ का अभाव था, इसलिए ही उनको बैकवर्ड बोला गया। कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लास कैसे हो गया? बैकवर्ड क्लासेस वॉज बिकॉज दे हैड that scarcity of things that were pretty much available to other people. But now since ये सारी चीज़ें तो available है ना सब पे, they are still the backward class, and this is the baffling thing all in India. And I don't know why, but nobody is just talking about this. जब हर चीज़ आपके पास है तो अब आप backward कैसे? It should never be based on the caste. It should always be based on the amenities or the economic section, economic basis. If it is based on this caste thing, this is the wrong thing, and this is exactly what is happening. We're going to attach the screenshots in the end, wherein in the end video, the next video that I'm going to make is specifically on that act, because now we have learned the history, we've learned the articles as well. Now we're going to see what is happening in the present thing, okay, and one scheme, in order to understand that, okay, how things are actually done. I mean, look, this is absurd, this is absurd. चलो कोई बात नहीं जी, हम क्या करें, हम अपने पे आ जाते हैं। हाँ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP आर्टिकल 38, it is state, and that is how you learn, okay, article 38. So this article states that state has to do things for the welfare of people, but in fact state people को welfare नहीं करता है, state सिर्फ caste को welfare कर रहा है। state ने people को देखना ही छोड़ दिया है भाई, अलग ही level का चल रहा है सब। and it is not about a government, you all, if you all maybe watch this video till here, ये government एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। मतलब चलो क्या ही कर सकते हैं। okay, now the most important article 46. Article 46 is specifically now, okay, see 6 क्या कर रहे थे, 16 जो थे ना, 16 वो क्या कर रहे थे, जॉब्स कर रहे थे, क्योंकि 16 जॉब्स, तो जॉब्स से 6 सिमिलर होता है, दैट्स हाउ आई रिमेंबर। ओके, नाउ देखो ये तरीका नहीं है याद करने का, चलो आई वोंट से दिस तरीका, बट मेरे दिमाग में कुछ और है, आई जस्ट गिव यू हिंट, इफ यू ऑल कैन डू दैट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। सो इट इज़ 46, ओके। So you need to understand, earlier 6 were teen, इस बार 40 है, 40। Now it is up to you, however you take it, I have given you the hint. So whenever there is 46, that means it is talking about STs and SCs and their welfare. It is specifically giving us ST, SCs and welfare. That is, it promotes the interest of SC, ST and their and backward classes also, and their welfares and weaker section, basically वही है, ठीक है जी। एंड इस ये जो वेलफेयर्स क्या है, इनका इकोनॉमिक वेलफेयर जी हम वो देखेंगे, ठीक है जी। हम इनको सोशली जो भी इनजस्टिस होता है उससे वी विल हेल्प देम, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 46 जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये यही आर्टिकल है कि लोन्स दिए जा रहे हैं एस जो भी स्पेसिफिक एस को दिया जा रहा है वो आर्टिकल 46 के अंडर आता है। स्पेसिफिकली जो कॉमन दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम है, वो आर्टिकल्स अगर हमने पढ़ लिए हैं, बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिकली फॉर आर्टिकल STs एंड SCs, इट इज़ आर्टिकल 46, ओके। एंड इसके अंदर इनको क्या क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो भाई, नहीं सोच सकते हम बता देते हैं। देखो लोन दिए जाते हैं, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस दी जाती हैं, रिजर्वेशन दी जाती है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, जिसका कोई सेंस नहीं है। एंड देन ये दिया जाए ना, ठीक है, ये चाहिए, आप ये मत दो, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। आप स्किल डेवलपमेंट क्लासेस दो, वेरी गुड। आप क्या बोलते हैं, आपका कोचिंग प्रोग्राम्स जो प्रोवाइड होते हैं IAS के या फिर IPS के या फिर क्या बोलते हैं उसको IITs या फिर जो भी इनसे रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी, ये जो कोचिंग प्रोग्राम्स है ना, कोचिंग प्रोग्राम्स ये दिए जाए ना, आई से इट इज़ द बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग। बट दिस रिजर्वेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड, इज़ बिकॉज इट इज़ जस्ट प्रमोटिंग द एब्सोल्यूट ट्रैश in the workforce, and I'm saying it, and I'm openly saying it is a trash. Now imagine if somebody is getting 0 marks in mathematics, and I will give you an example, okay, I've just read this post, maths में उनके 0 marks हैं and he is the teacher of mathematics in government school. No wonder government school की हालत में बेहाल क्यों है, क्योंकि जब ऐसे टीचर्स होंगे ना इनके पास विजन होगा, ना इनको पढ़ाना आना ना आना तो दूर की बात है,
मैथ बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा वो तो हम छोड़ देते हैं, बट एक विजन ऑफ अ टीचर दैट इज़ क्लियरली मिसिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये रिजर्वेशन इज़ द वर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपन। अभी तक हो गया और अभी भी हो रहा है और आगे और पता नहीं क्या ही नीचता पे गिर रहे हैं लोग, बट वट। सो आर्टिकल 46 जो है हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप्स, स्किल डेवलपमेंट, लोन्स, ये देता है, ठीक है, कोचिंग प्रोग्राम्स, दीज आर वेरी गुड थिंग्स. You do give them, you make them learn things so that they can do better. Just don't give them freebies so that they do not eat. So what is the point? अगर आप ये आप कोचिंग आप राइट वेट नो सी आप कोचिंग दे रहे हो बहुत बढ़िया, उनको समझ में आ रहा है, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है कि दे आर गोना compete. Skill development, very good. This is what was required. They need to have their skills to be developed so that they can help the India. Loans, for sure. They have the business. Do give them loan on less interest and they can in turn, you know, इंडिया को आगे बढ़ाएंगे. जो पूरा का पूरा फोकस है वो ये होना चाहिए. रिजर्वेशन इज द सबसे शिटिएस्ट थिंग एवर दैट इज हैपनिंग. एंड बिकॉज रिजर्वेशन है इसलिए सॉरी टू से बट दे डोंट स्टडी, दे डोंट, बिकॉज दे नो दैट दे गेट रिजल्ट 0 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा. 0 मार्क्स आने के लिए क्या पढ़ना है भाई? मतलब 0 मार्क्स लाने के लिए तो मतलब भाई क्या ही पढ़ना होगा मुझे समझा दो. आप किताब भी मत खोलो ना. डोंट फील एनी फकिंग थिंग मैन. You're getting the damn 0 and you're getting selected. Where is the outrage? Nobody is just, I mean, I am just baffled with the things that is happening. But anyways, when I was studying, मुझे अच्छा नहीं लगता था. फिर मैंने अभी इसकी वीडियोस इसीलिए ही बनाई है ताकि एवरीबडी रियलाइज दैट जो भी चीज़ें हो रही है ना वो बहुत ख़राब हो रही है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. पर अब कुछ नहीं कर सकते. कर सकते क्या? तो भाई ये क्या देते हैं? स्कॉलरशिप देते हैं, लोन्स देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं और स्किल्स को भी करते हैं काम. तो ये ऑल कम इन द आर्टिकल 46. मतलब ये छोटे आर्टिकल्स आपको समझ में आ गया. आर्टिकल 46 याद रखिएगा. 6 इज़ हाँ हो गया. अब 16 जो थे वो जॉब कर रहे थे एंड अगर 40 आ जाए तो STs एंड SCs पे फोकस करेगा. Okay, now we are going to go in the depth. Depth is because there is another thing which is Article 338, 338A and 338B. ये आर्टिकल भी तो पढ़ने हैं. ये आर्टिकल कमीशन है भाई, हमने पढ़ी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस में. कौन कौन सी 2 कमीशन पढ़ी थी? एक काका केलकर कमीशन पढ़ी थी एंड सेकेंड कमीशन दैट वी had learned about was Mandal Commission, right? It was 1979, 1953. उससे पहले प्री इंडिपेंडेंस में व्हाट वी स्टडीड पूना एक्ट पढ़ा था. पूना एक्ट 1932 में हुआ था जो अम्बेडकर एंड गांधी जी का अग्रीमेंट था हिंदू यूनिटी के लिए और उसके बेसिस पे और ज़्यादा उनको रिजर्वेशन दे दी गई थी. सबसे नॉनसेंस चीज़. एंड उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा था? कम्युनल अवार्ड्स पढ़े थे जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे डिफरेंट कास्ट्स को एंड उसके बेसिस पे इनको रिजर्वेशन दी गई थी. ठीक है जी, ये पुराना है, कल की वीडियो का है. आज अब हम लेटेस्ट ये पढ़ने वाले हैं और फिर हमारा मेन खत्म हो जाएगा एंड देन वी ऑल्सो विल बी लुकिंग एट अ स्कीम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड लाइक हाउ थिंग्स हैपन. ओके, एंड लाइक हाउ स्कीम्स हैपन. एंड एक स्कीम कोई भी हम ले लेंगे एंड देन वी आर एक्चुअली मूविंग इनटू दैट वन टिपिकल जोन ऑफ SC एक्ट वेयर वी विल सी एग्जाम्पल्स क्या हो रहा है आज प्रेजेंट में. तो ये पास्ट खत्म होते होते आज प्रेजेंट में और उसी में हम फ्यूचर की भी बात कर ही लेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं तो कार्यक्रम. Okay, so we'll start with Article 338. Okay, see, now we have learned about some of the articles. Now we have learned about कि किस किस रिजर्वेशन मिलती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार वो रिजर्वेशन ऐसे मिल जाएगी. कोई तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा होगा ना इनके लिए. तो इनके लिए जो काम कर रहे हैं वो है कमीशन. कौन काम कर रहा है भाई? कमीशन काम कर रहे हैं. ओके, सो आर्टिकल 338 is actually the commission for STs and SCs. Okay, now it is actually, it's called National Commission for Scheduled Castes. National Commission for Scheduled Castes, NCSC. ठीक है, एंड देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST. ओके, देखो हो क्या रहा है. फर्स्ट वी विल राइट. ओके, एंड देन सबसे पहले जी ये क्या करता है? ये है नेशनल कमीशन फॉर STs एंड SCs. ओके, NCSST. ठीक है जी, ये है पूरा. अब हो क्या रहा है? देखो पहले ना ये दोनों एक ही थे, मतलब दोनों एक ही थे, मतलब द STs एंड SCs वो अंडर वन कमीशन. बट होता क्या है? 2003 में 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है. 89th अमेंडमेंट एक्ट आता है और इस अमेंडमेंट के तहत व्हाट हैपेंड वाज दैट NCSC एंड NCST को अलग अलग कर दिया गया. ओके, इन 2003 में दे वर सेपरेटेड एंड आफ्टर दैट 2004 से दे स्टार्टेड वर्क NCSC एंड
NC/ST ये अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिए थे इन 2004, बट इन 2003 बाय द 89th अमेंडमेंट एक्ट एसटीज, आपको बताया ना कि इंडिपेंडेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी SC और STs को रिकॉग्निशन मिल चुका था, तो पहले उनका काम होना था। फिर हमने पढ़ा था कि OBCs कैसे आए थे, है ना, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई मंडल कमीशन आया था, और दूसरा कौन सा था, काका केलकर कमीशन थे, उन्होंने OBCs को लेकर आया भाई इंडिया में, ठीक है जी, थे ही बस, उन्होंने बस लिस्ट बना दी ये कास्ट है जो OBC। एनीवेज 2003 में 89 अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, 2003 में 89 अमेंडमेंट एक्ट आया है, और 2004 में सेपरेट जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने, सेपरेट का। अच्छा ये करती क्या है NC/SC ना, एक्चुअली इनके पास बहुत सारी चीज़ें करने को, हाँ पता नहीं करते हैं कि नहीं उतना, पर इनमें से कुछ चीज़ तो पक्का करते होंगे, पर हम चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट फॉर द कम्युनिटी। ओके, उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हेड होते कौन कौन है। इट हैज़ अ चेयरपर्सन, it has vice president, and then members, and all of these make a report, and then they present into the president annually ये रिपोर्ट बनाते हैं सब लोग, और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट होती है इनकी रिपोर्ट, ठीक है जी, क्लियर है। चलो नीचे आ जाते हैं, तो ये समझ में आ गया कि दे हैव व्हाट बॉडीज डू दे हैव, रिपोर्ट बनाएंगे और प्रेसिडेंट को एनुअली वो प्रेजेंट करेंगे। ओके नाउ, ओके अब इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन इनका काम वो इस रिपोर्ट में होता क्या है वो अब हम देख लेते हैं। देखो रिपोर्ट में व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और उनकी प्लानिंग में, किन की प्लानिंग में, SCs एंड STs। अच्छा अब ये कॉमन, अब देखना है SC वाले तो NC/SC वाले करेंगे, NC/ST STs का करेंगे, ठीक है, कॉमन काम सबका सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी जान लेंगे, बट ओके डेवलपमेंट में, ठीक है जी, ये चेक करेंगे कि एट्रोसिटीज़ ना हो इनके अगेंस्ट, ठीक है, ये भी चेक करेंगे कि इनको सारी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं और इन तक पहुंच रही हैं, यूटिलाइज भी हो रही हैं ये। एनीवेज ये तो शायद ही करते होंगे ये, ठीक है। उसके बाद ना ये अनटचेबिलिटी केसेस में, मतलब जितने भी ये बैकवर्डनेस पे जो भी एट्रोसिटीज़ केसेस होते हैं, एजुकेशन जॉब्स में जो भी केसेस होते हैं उनको करते हैं, लेकिन इनके पास एक स्पेशल पावर है, नॉट स्पेशल वैसे तो, बट थोड़ी बहुत स्पेशल, कि इनके पास ना एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट पावर, दैट मीन्स दे कैन समन एनीवन, they can summon anyone, okay, but cannot arrest, just summon, okay। so recommend कर सकते हैं कि भैया ये मान लीजिए इस बंदे ने गलती कर दी इनके मुताबिक, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ रेकमेंड करेंगे इसको कि ये लो इसने कांड कर दिया है, ठीक है, और समन कर सकते हैं, इससे पूछताछ कर सकते हैं, पेपर दिखाओ, ये करो वो करो, फलाना करो ढिमकाना करो, अरेस्ट नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट का पावर है बस, ना ये पनिशमेंट दे सकते हैं, ना जजमेंट दे सकते हैं, ना अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं और समन कर सकते हैं, डिमांड मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हैं, एविडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। अच्छा अब SCs का स्पेसिफिकली जो 2 ही 3 चीज़ों पे होता है, सबसे पहले तो उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ना हो, ठीक है जी, सबसे पहले उनके अगेंस्ट क्या ना हो भाई, एट्रोसिटीज़ ना हो, ठीक है, उनके खिलाफ कोई बोले ना, उनसे बदतमीज़ी ना करे, ठीक है, उसके बाद उनके एजुकेशन और जॉब्स में काम हो जाए, ये मेन ऊपर का मतलब क्रीम काम है। अब STs के केस में, STs जो है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यार, वो मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है कि STs जो है उनको थोड़े और चीज़ें मिल सकती हैं, बट क्योंकि STs जो है वो अपने मन से STs रहना चाहते हैं, इसलिए देयर कैन ऑल्सो बी डिबेट इन दैट। एनीवेज STs में इनको मिलता है लैंड एलिनेशन से प्रोटेक्शन। मान लीजिए इनका कोई लैंड है, ट्राइबल पीपल है ना, इनको नहीं पता, इन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, इन तक नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो इनका एरिया बहुत बड़ा होता है, एरिया बहुत ज़्यादा ओन करते हैं, इनका कल्चर जो होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस इज़ वेरी मच इन ट्राइबल पीपल, ठीक है, तो इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके लैंड ओनरशिप रखे, कोई इनसे एबडक्ट ना कर ले इनका, क्योंकि बदतमीज़ लोग तो होते ही हैं ना, छीन लेते हैं नॉनसेंस बिजनेस के नाम पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेस्ट एरिया जो है उसको बचा के रखना, ट्राइबल कम्युनिटीज़, उस चीज़ को NC/ST करती है, और सेम पावर होती है जैसी पावर NC/SC के पास थी। अब एक फेमस एक्ट है पीसा एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो NC/STs में ही ST का प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है भाई, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। आई होप आपको 338, अच्छा ओके शायद मैंने मिस कर दिया, क्या ये बताना, 338 is NC/SC, 338A is NC/ST, 338B ये भाई साहब आए हैं हमारे NC/BC। अब बैकवर्ड क्लासेस पे आ जाते हैं, ये STs का था, ये SCs का था, SCs हमने पढ़ लिया, ST हमने पढ़ लिया, ये 89th अमेंडमेंट 2003 सॉरी 3 की बात है, हाँ थक गया भाई, और ये NC/BC इज़ 102nd अमेंडमेंट
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18 की बात होगी, 2018 की बात है। तो अब हम NCBC पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें भी सेम वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होते हैं। ये रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को एनुअली। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, देखो SC वाले SCs के लिए काम करते हैं, ST वाले STs के लिए, तो OBC वाले यानी बैकवर्ड क्लासेस वाले अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करेंगे। तो एनीथिंग रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस विल गो डायरेक्टली टू NCBC, इस कमीशन के पास जाती है। तो मान लीजिए कि जी इस कम्युनिटी को या इस कास्ट को OBC में इंक्लूड होना है, तो इसका सर्वे NCBC करती है। इसका सर्वे जो है NCBC करती है, याद रखना। NCBC सब चीज़ का सर्वे करती है, और सेम OBCs के कंडीशंस के लिए, उनका सोशल बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका एजुकेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें, उनकी जॉब्स वगैरह OBCs करती है। ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। तो आई होप यू आर नाउ क्लियर कि NCSC, NCST एंड अरे यार NCS भाई बहुत दिक्कत है भाई, NCBC, ये तीनों 338, 338A एंड 338B इन्होंने ही सब करा है, या यही सब देखभाल करते हैं। अब हम एक छोटी सी स्कीम और पढ़ लेते हैं। एक स्कीम सो दैट हम फिर बाद में पढ़ लेंगे स्कीम्स और क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। हर एक स्कीम को डिटेल में आई ट्राई टू ब्रिंग इट यू गाइज। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एंड दिस इज अ गुड स्कीम, बट अगेन ये फोकस कास्ट पे कर रही है और एक्चुअली लोगों पे नहीं। तो क्या है भाई, स्टैंड अप इंडिया scheme. Okay, so we are talking about Stand Up India scheme. So Stand Up India scheme is specially mentioned for women, SC and STs. Thank God इन्होंने एटलीस्ट women तो करा, I am thankful. पर एक चीज़ इतना सोचने वाली है ना यार, कि मान लीजिए कोई SC है या कोई ST है जिस पे ऑलरेडी मनी है, और वो भी तो इस स्कीम में आ सकता है। इस स्कीम को ना ये ST सीस या women से हटा के एनीबडी होना चाहिए था। एनीबडी मतलब जिसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, उसके लिए होना चाहिए थी स्कीम। बट क्योंकि ये स्कीम नहीं है ऐसी, तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम किस किस के लिए है भाई, ये स्कीम विमेन, SCs एंड STs के लिए है। एंड दिस स्कीम इज़ गिविंग पीपल द लोन, 10 लाख से 1 करोड़ का लोन जो है ये प्रोवाइड करती है स्कीम, ठीक है। देखो इस स्कीम में मेन चीज़ क्या है कि जो बैंक है ना, बैंक के हर ब्रांच को एक SC ST और एक विमेन को ये कंपलसरी है, देना। तो मान लीजिए कि अगर एक बैंक है, इफ़ दिस बैंक हैज़ 20 ब्रांचेस इन 1 डिस्ट्रिक्ट, सो फॉर 20 ST या SCs को लोन मिलेगा और 20 ही विमेन को लोन मिलेगा, ठीक है जी। और ये है क्रेडिट स्कीम है, पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का सेकंड, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट इट इज़ अ क्रेडिट लोन स्कीम। दैट मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर द लोन टू द बैंक। देखो अभी हम इसको समझेंगे, उससे पहले इसका रीपेमेंट क्या है, इसका 7 साल का है। और ये स्कीम जो है ना, वन टाइम, लाइक जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट टाइम एंड न्यू बिजनेस कर रहा है, सिर्फ उसी को दिया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टाइमर्स एंड न्यू बिजनेस, इसको आई थिंक ग्रीन फील्ड बिजनेस भी बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ग्रीन फील्ड बिजनेस जो कर रहे हैं उनको ही एक बार चेक कर लेना। ग्रीन फील्ड बिजनेस जो न्यू बिजनेस है उसी के लिए दिया जाएगा, इतना क्लियर है। अब जो ये क्रेडिट स्कीम है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ भी रखने के लिए, मॉर्टगेज करने के लिए अगर कुछ भी नहीं है ना, तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ब्रांच है सिडबी। कौन सी ब्रांच है भाई, सिडबी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो सिडबी है यही प्रोवाइड कर रही है लोन्स, यानी कि अगर मान लीजिए इफ़ इन केस कुछ ऐसा होता है कि कोई भी बंदा, और होता ही होगा ऐसे तो, कि जो लोन है उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक थोड़ी ना भुगतेगा भाई, बैंक क्यों भुगते भाई, गवर्नमेंट की स्कीम में बैंक क्यों भुगते, इसलिए यहाँ से फिर इनके पास जाता है थ्रू, ये कवर कौन देता है, ये कवर देती है CGFSIL, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया, CGFIL, ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। तो आई होप ये स्कीम क्लियर हो गई होगी। 7 साल का रीपेमेंट है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है वो अमाउंट दिया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा अब एक चीज़ जो होनी चाहिए आपको ये लोन लेने के लिए, सबसे पहले तो भैया ग्रीन फील्ड बिजनेस होना चाहिए।
आप ST SC या फिर वीमेन हो, ग्रीन फील्ड में मतलब फर्स्ट टाइम और नया बिजनेस होना चाहिए, ठीक है जी, और एंटरप्रेन्योर, इसको प्रमोशन के लिए ये कर रहे हैं, और एक होनी चाहिए 10% ऑफ द लोन। 10% ऑफ द लोन, इसको बोलते हैं मार्जिन मनी। क्या बोलते हैं भाई? मार्जिन मनी। मार्जिन मनी इज 10% ऑफ द लोन, यानी कि मान लीजिए अगर आपको 20 लाख का लोन चाहिए रहेगा, ठीक है, तो आपको लोन कितने का मिलेगा? तो आपको लोन मिल जाएगा 18 लाख का, और 2 लाख आपको अपने पास से देने होंगे। 2 लाख आपको अपने पास से देने होंगे और 18 लाख का आपको लोन मिलेगा। तो ये सिड भी देख लेगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू NGCFIL, ठीक है, एंड 2 लाख आपका अपना रहेगा। तो ये है ये स्कीम। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मज़े से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और फिर 7 साल जो है इसका रीपेमेंट का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। सो आई होप सब क्लियर है, मज़ा आया है आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो बताना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। इसके बाद एक अच्छी सी एडिटेड वीडियो आएगी विद प्रॉपर रिसर्च ऑफ ST and SCI। ये पूरा हिस्ट्री हमने जान लिया है, हम लॉट ऑफ स्कीम्स वी गोना स्टडी, क्या क्या स्कीम्स दी गई हैं। गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस रिजर्वेशन इज़ hollowing the India because it is not providing what is required, it is just fulfilling for time being। एंड इसकी बेसिस पे हो क्या रहा है कि रिजर्वेशन वाले लोगों को बेशक जॉब्स मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बट वो सब्सटेंशियल जॉब्स नहीं है, उनके पास सब्सटेंस नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में, बिकॉज दे हैव नॉट डन द हार्ड वर्क। ओके, सो उनको स्किल डेवलपमेंट करवाइए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखवाइए, उनको दे शुड गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी अदरवाइज देन द जॉब्स। उनको खाने का, पीने का, राइट, उनको पढ़ाई का, दिस शुड बी गिवन सो दैट वो उनका लेवल इंक्रीज हो, ना कि उनको फ्री में 0 नंबर पे उनको भैया मैथ के टीचर बनाए जा रहे हैं, मैथ नहीं आता उसे एक क्या खक्क भी। दिस इज रॉन्ग। So this is my point. So stay tuned. We're gonna have another video. Lots of love and bye. Thank you so much.